پاکستان نے امریکہ یا اسرائیل کو ایران کے خلاف کسی بھی حملے کے لیے اپنی فضائی حدود، زمینی یا بحری جگہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی دے گا۔ پاکستان نے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کسی دوسرے کی جنگ، کسی بلاک کی سیاست یا دوسرے ملک کے فوجی تنازعات میں حصہ نہیں لے گا اور نہ ہی اس کا حصہ بنے گا۔ اسرائیل ایران جنگ کے حوالے سے چند اہم حقائق اور پاکستان کا اصولی موقف۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ تمام متعلقہ فریقین سے روابط قائم کیے، آئندہ بھی کرتا رہے گا تاکہ جارحیت کا خاتمہ ہو اور کشیدگی میں اضافے اور اس کے نتیجے میں خطے میں عدم استحکام جیسے سنگین خطرات سے بچا جا سکے۔ ہر تنازع کا اختتام بات چیت اور روابط کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ وہ تاخیر کی بجائے بروقت کوئی پرامن حل تلاش کریں۔ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے پاکستان کا اصولی موقف۔ پاکستان کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت اور تشویش۔ حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران اقوام متحدہ چارٹر کی روشنی میں اپنے تحفظ کا حق رکھتا ہے۔ مزید جارحیت اور کشیدگی خطے اور دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ تمام فریقین عالمی اور انسانی حقوق کے قوانین کی پاسداری کریں۔ خطے میں تنازع کا واحد حل اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق سفارتکاری اور مذاکرات ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر شدید حملہ۔ حملے میں 3rd جنریشن خیبر شکن میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی میزائل حملے میں 86 اسرائیلی زخمی، 2 عمارتیں مکمل تباہ۔ یہ میزائل مہلک ترین اور فضاؤں میں ہدف تک چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید خطرناک میزائل استعمال ہونا بھی باقی ہے۔ پاسداران انقلاب۔ ایرانی تنصیبات پر امریکی حملے ناقابل قبول اور غیر قانونی ہیں۔ ایران اپنی علاقائی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران ہر آپشن محفوظ رکھتا ہے اور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل ایران جنگ میں امریکہ کی مداخلت خطرناک نتائج لا سکتی ہے۔ اسرائیل کے اقدامات خطے میں امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نیوز کانفرنس۔ امریکہ کا ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ۔ فردو، نتنز اور اصفہان متاثرہ تنصیبات میں شامل۔ امریکی صدر کی جانب سے حملوں کی تصدیق۔ ہمارے جنگی طیارے حملہ کر کے واپس آ گئے، اب دنیا میں امن کا وقت ہے۔ ایران کو جنگ ختم کر کے سنجیدہ مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کرنا چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ ٹرمپ کی ایران کو سخت وارننگ، جواب دیا تو پہلے سے کہیں زیادہ طاقت سے حملہ ہوگا۔ ایران پر امریکی حملے شاندار فوجی کامیابی تھے، مربوط حملوں سے کامیابی ملی، تہران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دیں۔ ہمارا مقصد ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنا ہے۔ ایران نے اب امن کا راستہ اختیار نہ کیا تو مزید اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا امریکی حملے کو کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار۔ تنازع عالمی امن اور سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے اور یہ بے قابو ہو سکتا ہے، جس سے عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے، انتونیو گوتریس کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملہ، مختلف ممالک کی جانب سے رد عمل۔ سعودی عرب کا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے پر تشویش، تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ سعودی وزارت خارجہ۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا ایران پر امریکی حملے پر اظہار تشویش، معاملے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور، تمام فریق مذاکرات کی جانب لوٹ آئیں۔ کیوبا اور وینزویلا کی جانب سے امریکی حملوں کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملہ، امریکی کانگریس کے ارکان صدر ٹرمپ پر برہم۔ حملہ امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر بمباری آئین اور کانگریس کے جنگی اختیارات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ٹرمپ نے جذبات میں آ کر ایک ایسی جنگ کا خطرہ مول لیا
जो हमें नस्लों तक उलझा सकती है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का सोशल मीडिया पर पैगाम। गजा में इसराइली फोर्सेज के हमले बदस्तूर जारी। खुराक की तलाश में निकलने वालों समेत 26 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 48 घंटे में मजीद 202 फलस्तीनी शहीद, 1037 जख्मी। खान यूनिस में पनाह गुज़ीरों के कैंप्स पर भी हमले। गुज़िश्ता 19 माह से जारी सेहूनी फोर्सेज की जारहियत में 56,000 के करीब फलस्तीनी शहीद, 1,31,000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की इस्तांबुल में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा। ईरान पर इसराइल की जाहरियत तमाम आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ईरान की जोग्राफियाई खुद मुख्तारी और हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुलाकात में फ़रीक़ैन का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। मुहर्रमुल हराम में बिजली की बिला तअत्तुल फ्राहमी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का चेयरमैन और CEOs को खत। मुहर्रमुल हराम के तनाजुर में फौरी इक़दाम करने के अहकामात। शदीद गर्मी में बिला तअत्तुल बिजली की फ्राहमी को यकीनी बनाने की अशद ज़रूरत है। मजहबी तकरीबात के दौरान आवाम को किसी भी किस्म की तकलीफ से बचाया जाए। यौम आशूर को एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स को हाई अलर्ट पर तैनात किया जाए। वफाकी वज़ीर। पाकिस्तान का मौशी सफर SIFC की कामयाबी के 2 साल। ज़राअत के शोबे में इस्लाहात, जदीद तरीक़ेकार और कॉर्पोरेट फार्मिंग से पैदावार और बरामदात में इजाफा हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फ्रीलांसर्स की सहूलत के लिए पॉलिसी इक़दाम किए गए। IT बरामदात में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। SIFC ने सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारी को ही फ़रोग़ नहीं दिया बल्कि मुल्की मईशत में भी एतमाद, सिक्योरिटी और शफाफियत को यकीनी बनाया। SIFC आज सरमायाकारी, तरक्की और एक खुशहाल पाकिस्तान की पायदार जमानत बन चुका। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं, जिन्हें आइनी तौर पर मुकम्मल हुकूक हासिल हैं। नस्ली या लिसानी नफरत जहालत है। कौमी इत्तेहाद, बराबरी और हम आहंगी से ही कायम रहता है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब दे रही है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से गुफ्तगू और तबादला ख्याल। पाक भारत जंगबंदी, भारतीय सियासतदान और मीडिया से इख्फा। भारतीय सियासतदान और मीडिया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की किरदार कशी करने लगे। ट्रंप पर पाकिस्तान की हिमायत और क्रिप्टो मुआहदों में मुलविस होने के बेबुनियाद इल्जामात। अमरीकी सदर की नोबेल प्राइज की नामजदगी की सिफारिश पर भी तनकीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेजबानी करके भारत के दावों की नफी कर दी। सिंता सियासी नहीं, आलमी मुआहदा है। इसे यकतरफा मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान आलमी मुआहदों के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना गैर जिम्मेदाराना अमल है। इस तरह का अमल खतरनाक मिसाल कायम करता है। भारत फौरी तौर पर सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद बहाल करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। इजराइल ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके ईरान पर हमला किया। इजरायली इक़दाम से पूरी दुनिया खतरे में चली गई है। अगर आलम इस्लाम मुत्तहिद न हुआ तो सर्बिया की तरह एक एक करके सबकी बारी आएगी। नेतन्याहू ने इक़्तिदार कायम रखने के लिए ईरान पर हमला किया, मगर अब उसके इक़्तिदार का खात्मा करीबान पहुंचा है। PTI मुल्क दुश्मनी करके अल्लाह की पकड़ और कानून की गिरफ्त में है। फितना पार्टी जल्द अंजाम को पहुंच जाएगी। चीनी बहरान पर जल्द काबू पाकर कीमतें वापस लाएंगे। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाए तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और आसानियाँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अज़्म। महकमा दाखिला पंजाब में डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। महकमा जेल, सिविल डिफेंस, हाईवे, पेट्रोल और सिक्योरिटी कंपनी से मुतल्लिक हेल्पलाइन कायम। सिक्योरिटी गार्ड्स या सिक्योरिटी कंपनी से मुतल्लिक हेल्पलाइन पर शिकायत का इज़ाला फौरी मुमकिन। अवाम के जानो माल की हिफाजत और खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। अवामी शिकायत के इज़ाले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज शरीफ।
पंजाब में अशरे मुहर्रम के दौरान साइबर पेट्रोलिंग और फौरी रिस्पांस फोर्स की तैनाती और मोबाइल फोन्स की निगरानी करने का फैसला। सूबे में 1,10,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। 25 जून को इजलास में मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान की हतमी मंजूरी दी जाएगी। मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में हर जिले में स्पोक्स पर्सन मुकर्रर करने का भी फैसला। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुल्क की इस्तेहकाम और अमन के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। फ़लस्तीन और गजा के बाद ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। मुहर्रमुल हराम में अमन की फ़ज़ा कायम रखने में सबको किरदार अदा करना होगा। वतन अजीज़ को बचाने में हमने वही किरदार अदा करें जो हमारे बड़ों ने किया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। दुश्मन पाकिस्तान में इत्तेहाद और यकजहती को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। दुश्मन मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है। हमने मिलकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में उलमा व मशाइख अपना किरदार अदा करें। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग को रुकवाने में आलमी इदारे अपना किरदार अदा करें। वक्त का तकाजा है कि तमाम मुस्लिम ममालिक सहूनी जाहिरियत के खिलाफ उठ खड़े हों। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की साहिबाल में मीडिया से बातचीत। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सरहदी अजला की सूरत हाल से मुतल्लिक़ इजलास। अशय खुरनोश ज़ायरीन और तालिब इल्मों की वापसी के इक़दाम पर ब्रीफिंग। विफाक से राब्ते के जरिए बरकी और LPG फ्राहमी बेहतर बनाने का फैसला। बॉर्डर एरिया में पेट्रोल की फ्राहमी के लिए विफाकी वज़ारत पेट्रोलियम से राब्ता जारी है। सरहदी इलाकों की आबादी को किसी सूरत खुराक की दुश्वारी न हो। ज़ायरीन और तलबा की बाहिफाजत वापसी बाइस इत्मीनान है। वज़ीर आला मीर सरफराज पुख्ती। मुल्क में प्री मानसून का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में कल तक मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और गुजरात में 40 से 60% जायद बारिशें मुतवक्के। मशहूर मारूफ कवाल अमजद साबरी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। अमजद साबरी ने दुनिया के 17 से ज़्यादा ममालिक में फ़न कवाली को जदीद अंदाज से मुतारिफ कराया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अमजद साबरी को 22 जून 2016 को कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था।